हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। आज हम देखने वाले हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगेन दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. So how is the bonding in coordination compound? So we know that first Werner discussed the bonding in coordination compound, but he failed to answer some of the questions that why only certain elements form the coordination compounds, or he failed to explain the directional properties of the coordination compound and magnetic and optical properties of the coordination complexes or coordination compounds. But later on many theories explain the properties or bonding in the coordination compounds like a valence bond theory, then ligand field theory, crystal field theory and molecular orbital theory. Today we will focus on this valence bond theory, which is called as a VBT. So valence bond theory developed by Linus Pauling in the year 1931. So this theory explains the formation of coordination bond between the central metal and the ligand in a complex. हमें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, तो जो सेंट्रल मेटल रहता है उसके वैकेंट ऑर्बिटल में लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. इस तरह से वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है. ओके, सो हियर द सेंट्रल मेटल प्रोवाइड द वैकेंट ऑर्बिटल. In that vacant orbital, the ligand donate their electron. Means there is a overlapping between the vacant orbital of the central metal ion and the field orbital of the ligand. But the field orbital of the ligand must contain at least one lone pair of the electron. So this is called as a coordinate bond formation, and the valence bond theory is totally based on the formation of the covalent bond. Now there are certain features of this valence bond theory. They are called as a silent feature of VBT. So we will discuss the silent feature of valence bond theory. So what are the silent feature of valence bond theory? तो सबसे पहले हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, उसमें सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन जो रहता है वो प्रोवाइड करता है वैकेंट ऑर्बिटल. सो central metal atom or ion provide definite vacant orbitals like S, P and D orbitals for the formation of coordinate bond. Now second feature is the vacant orbital is equal to, or the vacant orbital is same as coordination number of central metal atom or ion. मतलब ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो कितने रहेंगे कि जितना वो सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा. अभी हमारे पास एग्जांपल है, सपोज हम लेते हैं कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स CuNH3/4 एंड SO4. ओके, यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, मतलब कॉपर यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. तो यहाँ पे क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्या रहेगा. वैसे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 देन 4s1. तो +2 में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो यहाँ पे रहेगा 3d9 4s0 एंड 4p0. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो d ऑर्बिटल है, तो d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन. ओके, सो दिस इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. 4s में कुछ भी नहीं है, और p की बात करते हैं तो p भी वैकेंट है. तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन 3d से प्रमोट हो जाएगा 4p के pz में, और यहाँ पे 4 ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएंगे कुछ इस तरह से. ओके, तो ये d ऑर्बिटल वैकेंट हो गया. फिर ये इधर का
4s और ये 2 4p। यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो गया है यहाँ पे, तो ये जो 4 ऑर्बिटल है अभी, ये 4 ऑर्बिटल हो गए वैकेंट। नाउ थर्ड पॉइंट है वैकेंट ऑर्बिटल undergoes hybridization. Vacant orbital undergoes hybridization to form same number of hybrid orbital. Okay, इसका मतलब क्या है, ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं दे अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा ऑर्बिटल है, एक d है, एक s है और 2 p ऑर्बिटल है। सो दे अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्म dsp2 hybrid orbital. How many dsp2 hybrid orbitals? So 1 2 3 4, that is 4 dsp2 hybrid orbitals. Okay, so this is a third point. Now fourth feature is ligand having or has field orbitals having at least one lone pair of electron. मतलब जो लिगैंड है वो लिगैंड के पास जो उसकी फील्ड ऑर्बिटल है उसमें कम से कम एक लोन पेयर जो है वो होनी चाहिए। फिर क्या होगा, द लोन पेयर ऑफ लिगैंड इज डोनेटेड टू द सेंट्रल मेटल। द फिफ्थ पॉइंट इज there is a overlapping between the vacant orbital of the central metal and the field orbital of the ligand। मतलब सेंट्रल मेटल के वैकेंट और इसके फील्ड, इनके बीच में ओवरलैपिंग होगा और क्या होगा वहां पे, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो इस तरह से जो सेंट्रल मेटल है उसके वैकेंट ऑर्बिटल और जो लिगैंड है उसके फील्ड ऑर्बिटल ये आपस में ओवरलैप होंगे और ओवरलैप होने के बाद वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा। फिर क्या होगा, द शेप और ज्योमेट्री ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स, द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स on hybridization। मतलब हमें पता है कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस है इनकी स्पेसिफिक ज्योमेट्री रहती है, लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड है, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन अगर sp रहता है तो ज्योमेट्री कैसे रहेगी, लीनियर। इफ इट इज sp2 then it is triangular. If it is sp3 then it is tetrahedral. If it is dsp2 it is square planar, right? If the hybridization is dsp3 then it is trigonal by pyramidal, trigonal by pyramidal. If it is d2sp3, so how many orbitals are there, 6, so it is octahedral, and it is d3sp3, then the geometry is pentagonal by pyramidal। ओके, सो जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है, तो हाइब्रिडाइजेशन पे। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो वो ट्राइंगुलर रहेगी, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, d2sp3 है तो ऑक्टाहेड्रल। इस तरह से ज्योमेट्री जो है वो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेंगी।
Now next feature is the coordinate bond. The coordinate bond is stronger if overlapping is greater. अगर सेंट्रल मेटर और लिगेंड इनके बीच का जो ओवरलैपिंग है वो अगर ग्रेटर एक्सटेंट में है तो वो बॉन्ड कैसे रहेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा या फिर वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रहेगा. नाउ नेक्स्ट आता है फिर ऑर्बिटल जो है, जो कॉम्प्लेक्स है वो इनर स्फीयर है कि आउटर स्फीयर है. अगर ऑर्बिटल जो है वो इनर यूज होते हैं, मतलब n-1d ऑर्बिटल अगर यूज होता है, दैट इज इनर ऑर्बिटल, देन द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज अ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. अगर d ऑर्बिटल आउटर यूज होता है, मतलब nd ऑर्बिटल, हमें पता है n मतलब ये वैलेंस शेल है, n-1 मतलब पेनल्टीमेट शेल, मतलब आउटर से पहली वाली सेल. अगर nd इलेक्ट्रॉन यूज होता है तो हम उसे कहे, कॉम्प्लेक्स को कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ओके, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इट डिपेंड्स ऑन विच डी ऑर्बिटल इज यूज. अगर इनर होता है दैट इज n-1 होता है तो इनर ऑर्बिटल, अगर nd मतलब आउटर होता है, वैलेंस होता है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक नेचर. दैट मीन्स इफ सेंट्रल मेटल आयन और एटम present in a complex having unpaired electron, then it is called as a paramagnetic in nature. So paramagnetic. And if no unpaired electron, then it is called as a diamagnetic. ओके, अगर सेंट्रल मेटल जो है कॉम्प्लेक्स में, उसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो हम उसे कहेंगे पैरामैग्नेटिक इन नेचर. अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो उसे हम कहेंगे डायमैग्नेटिक इन नेचर और डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स. कई बार क्या होता है, जो लिगेंड रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जैसे Cn है या फिर NH3 है. ये लिगेंड कैसे है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये. तो ये लिगेंड जब रहते हैं तब इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है. क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग. तो इसे हम कहते हैं स्पिन पेयरिंग. क्या कहेंगे इसे, स्पिन पेयरिंग. तो इस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो जो कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसकी ज्योमेट्री कैसी है, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है या फिर कुछ डिफरेंट है, या फिर वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, उसका मैग्नेटिक नेचर क्या है, वो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है. ये सभी इंफॉर्मेशन हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर से मिलती है. ओके, तो आई होप आपको ये साइलेंट फीचर समझ में आए होंगे. इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल देखेंगे, that is a bonding in coordination compound on the basis of valence bond theory. So this is all about silent feature of valence bond theory. आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. सो थैंक यू.